Chief guest of the day, Honorable Vice Chancellor, Sardar Patel University, Professor C.L. Chandanji, organizer of this program, this event, Dr. Monica, all the head of the departments, all faculty colleagues, and dear students. So today, as has been agreed to it, that without health you can't achieve even your first step in life. So health is so important, and it's a very good initiative by you people that out of our 6 departments, so we have approx 17 or 18 models, which includes 3 or 4 models from Department of History also, and from all the departments. So students have done a huge, I would say, this to convey message to among us themselves and to the society as well. So definitely these kind of days, they initiated this World Health Day celebrations from 1950 onward. Even today, 7th April is the foundation day of World Health Organization also. So this health is such a huge issue that even if you ask your grandparents, and even if you ask your grandparents about their grandparents, so at that time there were not such kind of facilities in allopathic way, or maybe those kind of facilities available, but those people were more healthier than the citizens or than the human being which are right now on this cosmos, on this mother planet. So what was those things? What were those simple steps which are, you might have heard about Nani Ma's Nuskhe, Dadi Ma's Nuskhe. So what were those things? They were actually to live with the natural things, with the nature. So as now the time is that we are away from those natural trends, and we are fond of many foreign things. Foreign means which are not natural. Even this small ball pen which I am carrying here, so this we have framed it from an angle, from the individuality, right? And whatever you can do at your daily front, that will be a great contribution to not only in the health sector, but to this mother planet and to nature also. So these kind of celebrations or these kind of projects or whatever we do, that is to enlighten that kind of zeal, that kind of idea in our minds, and that should convey to your younger generations at school level or to village level, right? So for this event, I am very privileged to welcome the chief guest for this event, Professor C.L. Chandanji, our Honorable Vice Chancellor, and guest of honor, Professor Deepak Pathania ji. I welcome them for this event, and I really wish you people that who have participated, so they have done a great job, but the others who are the audience, who are the spectators, they should also start thinking that next time we will definitely participate, and even in the next events, it should be a challenge to us that how to organize. Today the 17 models, they are very good models, just having some different unique themes behind them. So next time, whatever students or whatever groups, right now we have 17, but next time it may go up to 100 or maybe 50. So that should be the participation level. So I wish you all good luck on this health day, and just be cautious about your health. Health is wealth. Thank you very much. ये जो है वो वाटर में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, जिससे हमारी डिफिसिट वगैरह है वो अच्छे से मतलब उनको सर्वाइव नहीं कर पाती है. तो ये जो पेस्टिसाइड है ये ह्यूमन हेल्थ में भी उसकी और ऑर्गेनिज्म में भी इफेक्ट करता है. एक सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारी ग्रेट लीवर ऑफ नॉर्थ अमेरिका है, उसमें ये पाया गया था कि हर साल वहाँ पे डिफरेंट मतलब पेस्टिसाइड के केमिकल पाए जाते हैं, जिसमें 200 अप्रॉक्सीमेटली हुआ था. तो सर अगर हम ह्यूमन हेल्थ कंसीडर करें तो पेस्टिसाइड से हमारी ह्यूमन हेल्थ में एक्सप्लेन कर सकते हैं, टू टाइप से इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं. एक शॉर्ट टर्म इफेक्ट
नेक्स्ट इज लॉन्ग इसमें साइंस क्या है? टर्म इफेक्ट की बात करें तो जैसे नोजिया, डायरिया, अच्छा, कैसे? और अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट करें की बात करें तो ये फर्टिलिटी रेट को लो कर रहे हैं हमारी लीविया कर रहे हैं सिस्टम को हमारे इफेक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर जैसे फिशेस अगर ऐसा नहीं कि फिशेस को इफेक्ट कर रहे हैं, हम फिशेस को कंज्यूम कर रहे हैं तो ये अगर कुछ साइड कर रहे हैं और Can you name some component which can be magnified to large extent in a human from this level to कौन से pollutants तो ये इंडस्ट्री दिखा which रही are है high इंडस्ट्री में तो वेस्ट पे पानी मिल रहा है सिलेनियम भी हो रहा है यही माइनिंग उनके ऑक्सीजन लेवल पर नहीं हो पाता जिसकी वजह से वो सर्वाइव नहीं कर पाते अगर हम यहाँ पे बैठे से हमने यहाँ पे डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि कैसे लाइफस्टाइल पहले होता था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसमें क्या चेंज है। तो सर आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे पहले कितने ज़्यादा नेचर होते हैं सर। अगर हमारे पास फॉरेस्ट है तभी हमारे पास सन है, हमारे पास फॉरेस्ट नहीं होता। तो सर यहाँ पे इंसान ने अपने इतना लालच और खुदगर्ज इंसान बन गया कि उसने अपने पेड़ काटने शुरू कर दिए। सर कई जगह तो ज़रूरी है कि पेड़ काटना है सड़कें निकली टनल्स पर सर कई जगह तो ऐसे हो रहा है कि इंसान जस्ट फॉर कि महंगे फर्नीचर महंगे से महंगा फर्नीचर उसे चाहिए अपनी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए जितनी ज़्यादा उसे ज़रूरत नहीं है उससे ज़्यादा वो पेड़ों को काट रहा है, जिसकी वजह से सरकार में डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, जिसकी वजह से हमें अफेक्ट पड़ रहा है ह्यूमन बींग्स को। तो सर ह्यूमन बींग्स ये सोच रहा है कि हम जो अपना प्लानट है अगर उससे हम चीज़ें ले रहे हैं उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं तो सर वो इनडायरेक्टली खुद का ही एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। क्योंकि सर हम पढ़ते हैं कि जो 5 मास एक्सटिंक्शन थी वो हो चुकी थी तो 6 मास एक्सटिंक्शन ऑन है जिसका डेंजर ह्यूमन पे खुद पे है। अगर 6 मास एक्सटिंक्शन हो रही है तो ह्यूमन भी यहाँ से चला जाएगा। और सर अगर ह्यूमन चला जाता है तो आप देखिए कि जो अर्थ है वो और भी ज़्यादा फ्लरिश होगी, जो यहाँ पे फ्लोरा एंड फौना है। क्योंकि सर आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जिस तरह से पहले जो एनिमल्स थे वो किस तरह से खुले में घूम रहे थे, लेकिन सर अब हमें इतनी ज़रूरत पड़ रही है कि हमें जूलॉजिकल पार्क और किस तरह से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज करके उनकी कंजर्व करने की ज़रूरत पड़ती है। सर आप देख रहे हैं कि पहले हमारे पास ऑर्गेनिक फार्मिंग थी तो इंसान कितना अच्छे से न्यूट्रिशन मिल रहा था, कितना ज़्यादा लाइफ स्पैन होता था। पहले हमारे बुजुर्ग 100 और 100 मोर देन 100 भी क्रॉस कर देते थे। तो सर अब वही हमारे जो फर्टिलाइजर इंक्रीज करके और हमारे पास जितनी भी लैंड है सर कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि इंसान आजकल किसी के लिए भी वेट नहीं कर रहा, वो ज़्यादा जल्दी से जल्दी उसकी जो फसलें वो तैयार हो जाएँ जिसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू कम है, सोइल की डिग्रेडेशन हो रही है। तो जितनी हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है वो बैरन लैंड में हो गया। हम बोलते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी, पर सर हमारी थिंकिंग ये है कि खुद हमें खेती नहीं करनी है। 2 किलोमीटर अगर चलना होता है तो हमें गाड़ी में चल के जाना है खुद से पैदल, और हम फिर बोलते हैं कि हमारी हेल्थ पे इसका असर पड़ रहा है। सर इस तरह से हमने बताया है डस्टबिन रखे होते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मोस्टली कूड़ा जितना डस्टबिन में होता है उतना इससे बाहर होता है। इंडस्ट्री से और सीवेज डिस्पोजल हर घर पे जो है सीवेज है वो नदियों में फेंक रहे हैं। उसी नदी के पानी को आज इतनी ज़रूरत है कि आर और प्योरो का हमें यूज़ करना पड़ रहा है उस पानी को पीने के लिए। अगर इस पानी के साथ अगर कोई इवन इंसान की स्किन भी टच हो रही है तो उसको कितनी ज़्यादा डिजीज़ जो है उससे फैल रही है। तो सर सबसे बेस्ट रेमेडी इस चीज़ की है कि सीवेज डिस्पोजल को ऐसे यूज़ किया जाए ताकि इसको, क्योंकि टेक्नोलॉजी अगर इतनी एडवांस किया, हमने प्लानट का इतना ज़्यादा मदर अर्थ का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठा लिया है तो हमें उसको रिसाइकिल करके फिर से यूज़ करना चाहिए। जितनी हमारे पास बैरन लैंड पड़ी है उसको एग्रीकल्चर में लगाना चाहिए। और अगर हमारे पास सर इस तरह हमने दिखा दी कि इस तरह पूरी एग्रीकल्चर लैंड और यहाँ पर कुछ पैचेज जो है एग्रीकल्चर लैंड के, तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमें इस तरह से एग्रीकल्चर करना चाहिए कि थोड़े में हम कितना ज़्यादा मैक्सिमम उसमें से आउटपुट हम निकाल सकें। तो सर यही है। और अगर हम देखें तो हमारे पास आज भी वाइल्ड लाइफ में इतनी ज़्यादा प्लांट यूटिलाइजेशन है। अगर हम उनके नेचुरल हैबिटेट को ख़राब नहीं करें तो आज भी कितने वाइल्ड प्लांट हैं जिनको किसी खाद की ज़रूरत नहीं होती, कितने फ्रूट्स ऐसे हैं तो वहाँ से उसकी न्यूट्रिशन मेडिसिनल वैल्यू, जैसे कि सर हमने ये प्लांट भी लगाया जूनिपर, इसका मेडिसिनल कितने ज़्यादा यूजेज है। इसका मेडिसिनल ऑयल यूज़ होता है, एडियंटम है इसका बालों की ग्रोथ के लिए यूज़ होता है, कैंसर में इसकी डिजीज़ है, मोसिस में से कितनी डिजीज़ मतलब को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सर अगर इंसान मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान अपनी सबसे पहले रेमेडी उसकी अपनी सोच को बदले, अगर उसकी सोच अगर बदल जाती है तो हमारी हेल्थ के साथ वो पहले उसको प्लेनेट की हेल्थ ठीक करनी पड़ेगी, तब उसकी हेल्थ खुद ठीक हो जाएगी। सर पहले इतनी ज़्यादा डिजीज़ के नाम भी नहीं होते थे और आजकल हर एक व्यक्ति को आप देखेंगे हर एक पर्सन को एक न्यू डिजीज़ मतलब कोई ना कोई निकल रही है। तो सबसे पहले यही है कि अगर हम
थोड़ा उससे थैंक यू आज के डेट में क्या हो रहा है कि जो हमारी आने वाली सालों में हमारी सॉइल है उसकी लाइफ टाइम जो है वो कम हो रहा है। हमारे एक सदगुरु है, उन्होंने एक अभियान चलाया है सेव आवर सॉइल। उन्होंने इसके ऊपर चलाया हुआ है कि जितना ज़्यादा हम पेस्टिसाइड का यूज़ करें हमारी जो एज है सॉइल की वो ज़्यादा कम हो। और तो ये भी दिखा रहे हैं अगर पेस्टिसाइड का यूज़ ऐसे यूज़ करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि किसान ज़्यादा मतलब उगाने के लिए हमारे साल में एबिलिटी जो उसको और हमारे खेत भी हमारे यहाँ जो वर्क है इंडिया में अबाउट 85% जगह पर किसान ही है, सब अपनी फसलों से ही सर्वाइव कर रहे हैं। पेस्टिसाइड का पेस्टिसाइड जैसे कि कौन कौन से पेस्टिसाइड यूज होते हैं? जो हाईली टॉक्सिक है, हाईली टॉक्सिक आपको नॉन बायोडिग्रेडेबल आप कौन से पेस्टिसाइड यूज होते हैं? तो आपका पेस्टिसाइड का कुछ फर्क फूल के ऊपर पड़ा है और पड़ा है तो क्या हमें नुकसान है? एक और मेडिसिन है विच इज कॉल्ड डाइक्लोफेनिक, उसका वर्चस्व पे बड़ा उसका ज़्यादा है DDT से ज़्यादा है। हमने आप रोज खाते हैं डाइक्लोफेनिक, डाइक्लोफेनिक पेन किलर है, तो ये एनिमल्स को भी देते हैं, एनिमल्स को देते हैं। और वो वल्चर तो आगे उनकी फर्टिलिटी को रोक देती है। और DDT जो थी वो पक्षियों का जो अंडे होते हैं ना उनके शैल को कमज़ोर कर देता था। कल साइलेंट स्प्रिंग करके एक बुक आई है, कभी पढ़ना, वो एक्सप्लेन करते हैं इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड ऑन। इवन जो ये पक्षियों को चावल डालते हैं ये भी उनके अंडों की शैल को वीक करते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म में कहा गया कि उनको चावल डालना पाप है। पाप इसलिए बताया गया कि अल्टीमेटली वो उसको वीक करेंगे और अल्टीमेटली नए बर्ड्स की बर्थ देंगे। तो हमारे धर्म में तो ऐसा बताया जाता है ना कि जो नहीं करना है उसको पाप बताया जाता है ताकि लोग उसको फॉलो करें। स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि अगरबत्ती मत जलाओ। बैम्बू स्टिक जो है उससे इतनी पॉइजनस और डेंजरस गैस निकलती है, इट्स वेरी हार्मफुल फॉर द लाइफ। इसलिए हमने ये केमिकल यूज़ करी है क्योंकि हम ये पोल्यूशन दिखा रहे हैं वहाँ कोई पॉल्यूशन दिखा रहे हैं, पॉल्यूशन दिखाते हुए पॉल्यूशन मत करो। क्यों नहीं आप, मैं तो आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, बैम्बू से कौन हमारे क्रीमेशन ग्राउंड में भी जब किसी डेड बॉडी को क्रीमेट किया जाता है तो जो उसको कैरी करने के लिए बैम्बू यूज होता है उसको उसमें नहीं डालते, उसको अलग रखते हैं। तो हमारे जो फोर फादर्स थे who were not very educated and that's it, even they knew that bamboo is not to be burnt. तो बैन अगरबत्ती ये भी आप एक लगाओ स्लोगन। आप एक्सप्लेन करो। सर हमने बताया इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और अभी हम देखें तो आजकल एवरी मंथ चला है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब अगर हम यूजुअली और फॉर्मेशन इसकी चली रहती है, पर जब हम रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी फ्रीऑन्स निकल रहे हैं और वो स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उसको ओजोन एसोसिएट कर रहे हैं क्लोरीन मोनोऑक्साइड के साथ। बैन हो गया, they are not using refrigeration now. और उसके अलावा जो रॉकेट यूज़ होते हैं वो इनडायरेक्टली स्ट्रेटोस्फीयर में रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अंटार्कटिका में वहाँ पर डिप्रेशन हो गई थी ओजोन लेयर की। और अदर देन दैट जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो एक ग्रीन हाउस गैस भी है, तो ये कॉज कर रही है ग्लोबल वार्मिंग, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स भी बैन हो गए डेंगू मलेरिया वगैरह से। और हमें जो है प्लास्टिक को जो है कम से कम यूज़ करना चाहिए, और अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें 3R प्रिंसिपल है जिसको यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल और हार्मफुल इफेक्ट बता रहे हैं पेस्टिसाइड के और जो केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने के लिए। इसमें दिखा रहे हैं कि अगर जैसे बारिश होगी तो पानी जो है हमारी लैंड में पेस्टिसाइड जो है एक सिस्टम उससे खराब होगा, और साथ ही जो पानी हम नदियों का पानी घरों में फिर यूज़ करेंगे जो हमारी बॉडी को उससे हेल्थ में जो है जब हम उसको कंजप्शन होगा वाटर हमारे बॉडी में तो उसका हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। बट इसके जो दूसरे सेक्शन में हम दिखा रहे हैं कि अगर हम बायो फर्टिलाइज़र और बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करेंगे तो हमारी जो लैंड होगी वो न्यूट्रिएंट रिच होगी, क्योंकि वो ये जो होते हैं ये हार्मफुल नहीं होते, इनकी वजह से जो हमारे लैंड के अंदर सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये इनको हार्म नहीं करते हैं। तो ये यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि बायो फर्टिलाइज़र का
का यूज़ करते हैं हम क्रॉप की यील्ड भी बढ़ा सकते हैं और साथ में हम जो है वो हेल्दी न्यूट्रिएंट भी ले सकते हैं। एनवायरनमेंट में जो है टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ हो रहा है, जिसके कारण सिर्फ ग्लेशियर ही मेल्ट नहीं होते हैं बट नॉट भी पड़ता है कई एरियाज़ में, तो जो है ह्यूमन हेल्थ, वाइल्ड हेल्थ और एनवायरनमेंट सबको इफेक्ट करता है सर। और उसकी रेमेडीज़ भी है कि और ये जो है प्रेगनेंट वुमेंस और बच्चों के माइंड को भी स्ट्रेस देता है और ये हाई टेम्परेचर जो है हमारे को चिड़चिड़ा बना देता है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमें ग्रीनरी भी मेंटेन करनी पड़ेगी सर। और हम सभी हेल्थ की बात करते हैं पर अभी भी एक चीज़ रह गई जो है मेंटल हेल्थ के ऊपर आज तक इतनी ज़्यादा बात नहीं हुई है। तो बेसिक लेवल पे हम मेडिटेशन कर सकते हैं, उसका हमने यहाँ दिखाया है, मेडिटेशन, योगा, ये सब चीज़ें। यस सर। फिर आजकल बच्चे तो वीडियो गेम्स वगैरह खेलना पसंद करें, लेकिन अगर वो बाहर खेलेंगे तो उनकी डेवलपमेंट होगी और हेल्थ पर भी उनका अच्छा असर पड़ेगा। एमएससी ज़ूलॉजी 4th सेमेस्टर। आज हम वर्ल्ड हेल्थ डे पे हमने अपना जो मॉडल है वो थीम पे बनाया है आर प्लैनेट आर हेल्थ। हमने एक से एक सुनी होगी कि वी आर व्हाट वी ईट, पर इसको हमें थोड़ी मॉडिफाई करने की ज़रूरत है कि वी आर व्हाट वी ईट एंड व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी लिव इन। तो इसको डिपिक्ट करने के लिए हमने अर्थ के 2 क्वेश्चन दिखाए हैं, एक आज से 150 साल पुरानी अर्थ और एक आज की मॉडर्न अर्थ। अगर पुरानी अर्थ की बात करें सब कुछ एकदम नेचुरल हुआ करता है और उसको कोई भी बीमारियाँ नहीं लगती थी, बट आज हम जैसे आज के अर्थ को लेंगे, आज के इंसान को लेंगे, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई उसके वैसे इक्विपमेंट्स आते गए, वो और सक्षम होता गया, उसने अर्थ को अपनी ग्रीड की वजह से ओवर एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो हमें पता है कि ग्रीन हाउस गैस है। अगर हम उसकी पावर का अंदाज़ा लगाना चाहें तो हम इस फैक्ट को देख सकते हैं कि जो मरकरी है वो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे नज़दीक है सबके, पर वो हॉटेस्ट प्लैनेट नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वीनस है, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेयर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। अगर हम इसकी एमिशन ऐसे ही कंटिन्यू रखें तो हम भी एक अवन की तरह हमारी अर्थ काम करना शुरू कर देंगे, हम इसमें जिंदगी मर जाएंगे। और नेक्स्ट हम देखें, हमें लगता है कि आज का इंसान बॉडी बनाने में जिम जाता है, पर अंदर से वो असली खोखला है, उसको बहुत सारी बीमारियाँ हैं। पहले जो बीमारियाँ बहुत रेयर होती थी जैसे कैंसर, आजकल ये कॉमन कोल्ड की तरह हो गया, किसी को कोई अच्छा खाने की वजह से कैंसर है। हमारे लंग्स के लिए या हमारे बॉडी के लिए लेके आए, उसने हमारे मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ के लिए इसको कोप अप करने के लिए हमने वैक्सीन बनाई है, जो कि अभी उतनी कारगर नहीं है, पहले अभी प्रिवेंशन लेने की ज़रूरत है। ये क्या है? ऐसे अब इंसान की ग्रेड जो है वो इतनी बढ़ गई है, वो एक दूसरे से कम्पीट करना चाहता है, इंसान का दुश्मन बन गया है। न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, वेपन्स के लिए बहुत ज़्यादा स्मॉल स्टेप दैट वी कैन टेक एट अवर प्लैनेट टू सेव अवर प्लैनेट एंड अवर प्लैनेट बनाओ सारे वो एलोवेरा तो पॉल्यूशन से PM 2.5 तक कार्बन डाइऑक्साइड
बॉटम यूज करके आप किचन गार्डन ऐसे और जैसे मैंने लास्ट ईयर को भी रहता था उससे हमारी हेल्थ की हेल्थ हम अपने घर में भी कर सकते हैं मतलब घर में वगैरह जैसे एयर प्योरीफाई हम घर में ही फ्रेश एयर और बाकी सब ये सब करें और अब जैसे ये वाले पॉल्यूशन है हमारी वाटर बॉडी करती खराब हो जाए हमारी हेल्थ में कमी आ गई हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ये हम डिजीज और जिससे कि हम बीमार हो रहे हैं ऐसे करती और फिर मैं उसमें यूज अपनी जो आइस होगी उनको अपनी तरफ लेगा और बाहर प्योरीफाई करेगा। प्योरीफिकेशन के लिए क्या क्या प्योरीफिकेशन कैसे मैम ये जनरली मैम हैवा प्रिंसिपल पे होता है, मतलब इसमें कॉस्ट है इसकी दिल्ली में 20 करोड़। यस मैम ये हाई एक्सपेंसिव है, दिल्ली में लगाया तो जैसे बाजार में ट्रांसपोर्ट नहीं आ रही है तो पॉल्यूशन हो रहा है, उससे भी आप लोगों के लिए हमारे दूसरे भी आपको रेन वाटर यूज करके आप किचन गार्डन ऐसे जैसे मैंने लास्ट ईयर को भी रहता था तो उससे हेल्थ हम अपने घर में भी ले सकते हैं, मतलब घर में फ्रेश और बाकी ये सब करें और अब जैसे ये वाले खराब हो रहा है हमारी हेल्थ में कमी आ गई हमारी इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है हम और जिससे कि हम बीमार हो रहे हैं ऐसे करती और फिर मैं उसमें यूज है